87. 87. Can we start? I think we can start. अभी 2 मिनट और है यार. Let's just wait because people are joining in, you know. Yeah, sure. 2 मिनट और है, please. It says 3 minutes. It said 3:30 onwards, so you know. That's right. Yeah, we'll wait. It takes some time for people to log in actually. Yes. Sure. तब तक कोई गाना सुनाइए. आप ही सुनाइए. नहीं, सब कुछ मैं करूंगी क्या? नहीं तो आप इतने सुंदर लग रहे हो आज. हाँ, सुंदर भी मैं लगूं, गाना भी मैं गाऊं, भाषण भी मैं दूं. अच्छा है ना? ना तो कमला जी, it's your day today ना? आप ही करोगे. ना. एक रूबी भारद्वाज से कहते हैं, रूबी जी आप गाना सुनाइए, आपका इतना. वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना. रूबी has no voice to sing. आप सुनाइए ना please. Who is judging the quality of how you sing? Just principal. आप एक there is no NAT grade for this. रजनी है ना हमारे साथ. रजनी अनुरागी हिंदी डिपार्टमेंट की, वो बहुत अच्छा, वो कुछ पोएम सुनाएंगी. कृति उपल कह रही है गाओ. राजी लक्ष्मी तुम्हें कह रही है वो गाओ. नहीं. Kriti Uppal sings pretty well. She's been posting some videos. Kriti, why don't you sing? Yeah. या उनको कहो ना 1 मिनट गा दे बढ़िया सा. Come on. Kriti, थोड़ा सा गा दो. उत्तम रहेगा. गाओ. Okay, ma'am. This song. Come on, anyone. जो आपको पसंद है. 1, 2, 3. Okay, ma'am. So we are preparing a song for rape victims. So, ma'am, I'll just sing a few lines from that only. Wow. Okay. Just a second, ma'am. ओरे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे. ओरे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे. Thank you, ma'am. Wow. Wonderful. Very nice. Beautiful. बहुत सुंदर. What a melodious voice, my goodness. Nice. I think we should start now. Okay. एक तो निर्मला साहब प्लीज साइलेंट पे सबको करवा देना यार प्लीज. सबको म्यूट करवा देना. On behalf of the HDFE department, a very warm welcome to everyone present here today. Professor Swati Pal, Principal JDMC, faculty members and students from JDM and other colleges, friends from NGOs and dear students. It's my pleasure and privilege to introduce our guest for today, Kamla Bhasin ji, a feminist activist by training who has been actively engaged with issues related to development, gender, education, and media since 1970. Currently, Kamla ji works with Sangat, a feminist network, as an advisor, as well as with Jagori, a women's resource and training center trust, as an active member. She's the South Asia coordinator of 1 Billion Rising, a global campaign to end violence against women and girls, and co-chair of the worldwide network Peace Women Across the Globe, and member of South Asians for Human Rights, United Nations Human Rights. Prior to this,
Kamla ji worked with the Food and Agriculture Organizations of the United Nations for the last 27 years. Kamla ji has been engaged with gender issues, peace, human rights and democracy, and seeks to explore and articulate connections between these issues and to promote synergies between different movements. She has contributed a great deal to literature on gender, and she has worked on various gender sensitization workshops with non-governmental organizations, colleges, and with the police personnel. A warm welcome to you, Kamla ji. So glad that you accepted our invitation to be here with us today. I welcome our principal, Dr. Swati Pal, to this session and request her to please welcome our guest for today, Kamla Bhasin ji. I think you have already welcomed her, and I'm always, अभी आप कह रही थी कमला जी कि आपको बड़ा डर लगता है अथॉरिटी से, और मुझे तो ज्वालामुखी से बहुत डर लगता है, और आप किसी ज्वालामुखी से कम है ही नहीं। So ज्वालामुखी के सामने एक ऑर्डिनरी सी डोरमेंट वॉल्केनो की क्या जरूरत कुछ कहने के लिए। However, it is my deep pleasure, honor and privilege to welcome you on this forum, to speak to this audience that has gathered here, which I know is not just from Janki Devi Memorial College, but from across the country, and I believe even some from outside the country. I just want to say that there's two things that I want to say कि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ कमला जी, या आपको सुनती हूँ, जब आपने अब कई बार हमारे कॉलेज में आकर हमारे बच्चों को संबोधित किया है, तो जब भी मैं आपको सुनती हूँ तो एक नई सी एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है। एक नए सिरे से लगता है कि आइडियलिज्म जो है वो मुझे कभी कभी बहुत सिनिकल हो जाती हूँ या बहुत स्केप्टिकल हो जाती हूँ, लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है, इट्स ऑल कम टू एन एंड बिकॉज थिंग्स आर सो अगली, यू नो, हिस्ट्री कीप्स गेटिंग रीरिटन, पीपल आर सो फुल ऑफ लाइज, लोग इतना झूठ बोलते हैं। ये दलित वाला जो केस हुआ है हाथरस में, इसमें ही आप देख लीजिए कि द अमाउंट ऑफ लाइज, द अमाउंट ऑफ falsehood, the way that history is rewritten, the histories of people are constantly being rewritten by liars. That is what I feel. तो इसीलिए कभी कभी जब मैं ये देखती रहती हूँ, and as an administrator ये तो मैं बहुत देखती हूँ, जैसे मेरे बारे में भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसे जान जाती हूँ जो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी, मैं ऐसा भी हूँ, मैं ऐसी भी हूँ। तो ये जो rewritten history है, it is very disturbing, it is very traumatizing, और it also has a very dampening effect on the human psyche. When I meet you, एक नए सिरे से ऐसे लगता है कि नहीं, there are people like you, there is this kind of passion, this kind of belief, and that gives me a momentum. So I am not going to take up any more time, because I think whatever time we have, you should be the one speaking, and you should be, you know, your zeal, your energy, your drive, and your plain speak. What I love about you is कि आप इतना plain speak करती हैं ना कि धज्जियां उड़ा देती हैं आप, किसी कोई भी कुछ बकवासबाजी कर ही नहीं सकता आपके सामने. So I love that about you. I really love that. So welcome once again to this forum, and I'm waiting as always to listen to what you have to say today. Thank you. Thank you, Dr. Pal, for your words. And Kamla ji, over to you. Please initiate the session. Thank you so much for accepting. Ji, thank you, Nirmala. Thank you, Rajya Lakshmi. Thank you, Swati. भारत का संविधान जिंदाबाद, समानता जिंदाबाद. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे याद किया और एक बार फिर से बुलाया. दोस्तों, मैं आज ऐसे शुरू करूंगी कि शायद आपने किसी भी परकटी फेमिनिस्ट को ऐसे शुरू करते हुए नहीं सुना होगा.
तो मैं शुरू करूंगी उपनिषद के एक मंत्र से। वो है कि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या कहता है ये कि हमें बनाने वाली जो शक्ति है, परमात्मा है, वो पूर्ण है। उससे पैदा हुए हम भी पूर्ण हैं। पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। यानी दुनिया में हर जीवित चीज, सिर्फ इंसान ही नहीं, पूर्ण है। कोई भी आधी नहीं है। यानी हमारे माँ बाप से पैदा हुए हम बच्चे उनसे आधे नहीं है, पूर्ण है, चाहे वो माने चाहे न माने। हमारे टीचर्स के पढ़ाए स्टूडेंट हैं, मगर अपूर्ण नहीं है। दे आर नॉट हाफ, दे आर नॉट इनकम्प्लीट, दे आर फुल। मैं भाषण देने वाली, आप सुनने वाले, आप अपूर्ण नहीं है, संपूर्ण है। घर की मालकिन से घर में काम करने वाली औरत आधी नहीं है। Everybody is a perfect being and deserving of full respect of everybody. क्यों? क्योंकि कुदरत ने हम सबको पूर्ण और समान बनाया है। इस पे जरा सोचना। हम सब इंसान पैदा होते हैं। जब हम अपनी माँ के कोख से निकलते हैं, उस वक्त तक हम इंसान होते हैं। और इंसान होने का मतलब है कि हम पूरी दुनिया के हर इंसान से जुड़े हुए हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। मगर जैसे ही हम अपने परिवार में कोख से बाहर आते हैं, हमारे ऊपर ठप्पे लगाए जाते हैं। हिंदू पैदा होते ही, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पैदा होते ही, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिकन पैदा होते ही, ब्राह्मण, दलित पैदा होते ही, ब्लैक, वाइट, अमीर, गरीब। मतलब एक इंसान जो पूरी दुनिया से जुड़ी हुई थी अब तक, उसकी आइडेंटिटी को छोटा 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 करते जाते हैं। और मैं पूरी दुनिया से लगभग कट जाती हूँ, एक छोटे से ग्रुप के साथ जुड़ती हूँ। मैं जिसकी पूरी दुनिया परिवार थी, वसुधैव कुटुंबकम, अब वो केवल इंडियन है, हिंदू है, अपर क्लास है, अपर कास्ट है, ऐसी है वैसी है। और दोस्तों, ठीक इसी तरह हम जो इंसान अंदर से आते हैं, हमें इंसानियत का दर्जा छीन लेते हैं और कहते हैं कि तू लड़की है, तू लड़का है, और तू, अरे तू तो इंटरसेक्स है, ना लड़की है ना लड़का है। और सिर्फ ये नहीं कहते, अगर मैं लड़की हूं तो मुझे कहते हैं कि हाय हाय, ये कहां से पैदा हो गई, हमें तो लड़का चाहिए था। मैं लड़की हूं तो मुझे बताया जाता है कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, कैसे नहीं पहनूंगी, मैं कैसे हंसूंगी, कैसे नहीं हंसूंगी, कैसे रोऊंगी, कैसे नहीं रोऊंगी। धीरे धीरे बताया जाता है मैं क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, मैं कहां जाऊंगी,
कहाँ नहीं जाऊंगी। और लड़के को भी यही कुछ बताया जाता है, तू लड़का है, कुल का दीपक है, तेरा तो हम सदियों से इंतजार कर रहे थे, राजा बेटा है, तू ये करेगा, ये नहीं करेगा, तू यहां जाएगा लेकिन किचन में तू नहीं जाएगा, वहां लड़कियां जाती हैं, औरतें जाती हैं। तू बंदूक से खेल सकता है लेकिन गुड़िया से तू नहीं खेल सकता। तू ब्लू पहन सकता है, तू पिंक नहीं पहन सकता। यानी दो फुल इंसानों को आधे में बांट दिया जाता है। और बिना पूछे कि तुमको ये पसंद है क्या, तुमको पिंक पसंद है कि नहीं पसंद, तुमको ब्लू पसंद है कि नहीं पसंद, तुम लड़की हो, तुमको कान छिदवाने हैं कि नहीं छिदवाने, कोई पूछेगा नहीं। तो हम जो पूरे पैदा होते हैं वो आधे कर दिए जाते हैं। कोई रो सकती है, कोई रोएगा ही नहीं। कोई पेड़ पे चढ़ सकता है, दूसरा चढ़ेगा ही नहीं। और सिर्फ आधे नहीं कर दिए जाते, ये भी बताया जाता है कि सुपीरियर कौन है, इंफीरियर कौन है। लड़का तुम सुपीरियर हो, ब्राह्मण तुम सुपीरियर हो। इंडिया में आजकल कहा जा रहा है कि हिंदू तुम सुपीरियर हो। तो देखो दोस्तों, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, और क्या हम इस तरह बांटे जाने से खुश हैं? क्या हम इस तरह आधा बनाए जाने से खुश हैं? डू आई वॉन्ट टू बी हाफ और डू आई वॉन्ट टू बी फुल? आई वॉन्ट टू बी फुल। मैं हंसना भी चाहती हूँ और रोना भी चाहती हूँ, मैं जोर से बोलना भी चाहती हूँ और सुनना भी चाहती हूँ, मैं खाना भी बनाना चाहती हूँ, मोटरसाइकिल भी चलाना चाहती हूँ। मैं क्यों आधी हूं और मैं क्यों इंफीरियर कहलाऊं? तो ये हमें इंफीरियर और सुपीरियर भी बना देते हैं। अगर बाहर समाज में बनाए तो चलेगा, शायद चलेगा, नहीं चलेगा, मगर नॉट दैट बैड। लेकिन एक परिवार में जहां सिर्फ 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, वहां आधे लोग सुपीरियर हैं, आधे इंफीरियर हैं। सुपीरियर किस बेसिस पर है? सिर्फ एक बेसिस है, जिसको पीनस है वो सुपीरियर है, वो वजाइना वाली सारी इंफीरियर है। क्या बात है, क्या जबरदस्त क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, ये है पेट्रियार्की, जो कुदरत ने नहीं बनाई। जैसे हम बाहर आए, पेट्रियार्की की गोद में आ गए। लड़के सुपीरियर, लड़कियां इंफीरियर। पेट्रियार्की की थोड़ी सी परिभाषा दे दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जानकी देवी कॉलेज में हूं भैया, पढ़े लिखे लोग हैं, तो थोड़ी थ्योरी भी मार देती हूँ, नहीं तो आप समझोगे कि बुढ़िया को थ्योरी नहीं आती। What is patriarchy? Patriarchy is a social system. यानी मेरे माँ बाप खराब लोग नहीं है। सिर्फ वो नहीं कर रही ये बात कि तू लड़की है, तू फलानी है, तू भिखानी है, पराया धन है। वो दोनों बेचारे एक सोशल सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने भी यही सुना, यही सीखा और वही रिपीट कर रहे हैं। या तो वो इसमें विश्वास रखते हैं या उनके अंदर हिम्मत नहीं है इसको बदलने की। तो पेट्रियार्की एक सोशल सिस्टम है जिसमें पुरुष को बाय डेफिनेशन सुपीरियर माना जाता है। बाय डेफिनेशन, नो रीजन, नो साइंटिफिक रीजन। जैसे रेस में व्हाइट्स को सुपीरियर माना जाता है। क्यों?
और भाई तुमसे ज्यादा तेज काले भागते हैं, सारी बड़े बड़े भागने के मेडल्स उनके पास है, तुम कैसे सुपीरियर हो? नहीं, बाय डेफिनेशन ब्राह्मण को बाय डेफिनेशन सुपीरियर माना जाता है। नो साइंस, डंडे के जोर पे। Thirdly, in patriarchy, men have more control over three things: resources, decision making, and ideology, विचारधारा। हम कैसे सोचेंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, ये सब लार्जली मर्द डिसाइड करते हैं। धर्म डिसाइड करते हैं, धर्मों में औरत की कोई जगह नहीं है। पार्लियामेंट्स डिसाइड करती हैं, जहां हमारे यहाँ 1950 से आज तक 11% से ज्यादा औरतें कभी नहीं बैठी। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स वगैरह वगैरह डिसाइड करते हैं। इंडिया में 90% से ज्यादा मर्द वाइस चांसलर्स हैं। तो ये है पेट्रियार्की, जिसमें आप सब और मैं पैदा हुए हैं। पेट्रियार्की एक ग्लोबल सिस्टम, ये सिर्फ इंडिया में या साउथ एशिया में नहीं है, अमेरिका में भी आजकल तो बहुत दिखाई देता है। अगर उनके प्रेसिडेंट साहब को दिख लें तो आपको पेट्रियार्की की एक बहुत ही बदसूरत नजर आ जाएगी। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को आजकल देख के पेट्रियार्की की बदसूरत नजर आ जाती है। और पेट्रियार्की वो सिस्टम है दोस्तों जिसको औरतें भी उतना ही मानती हैं जितना पुरुष मानते हैं। तो पेट्रियार्की है इसका मतलब नहीं है कि औरतें नहीं मानती होंगी। पेट्रियार्की एक पुराना लफ्ज है, आज इसका मतलब बदल गया है। पेट्री का मतलब पितरी, पितरी सत्ता, लेकिन आज इसका मतलब पितरी नहीं है, क्योंकि पेट्रियार्की सिर्फ परिवार में नहीं है, ये बस में भी है, मेट्रो में भी है, कॉलेज में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, हर जगह है। और ये इसलिए आज इसका मतलब पेट्रियार्की नाम है, लेकिन इसका मतलब है मेल डोमिनेशन। कहते हैं पुरुष तंत्र, लेकिन पितृतंत्र, मगर मतलब है पुरुष तंत्र। और दोस्तों, अगर पेट्रियार्की होगी, मर्दों का अगर तंत्र होगा, रूल होगा, तो यहां हिंसा जरूर होगी। किसी भी अन्यायपूर्ण सिस्टम को चलाने के लिए हिंसा जरूरी है। जो दबे हुए हैं उनको बताने के लिए कि देख लो यहां हाकिम कौन है, सुपीरियर कौन है। तो ब्राह्मणों को, ऊंची जाति वालों को बार बार बताना पड़ता है, दलितों की लड़कियों को रेप करके बताना पड़ता है कि वो नीचे हैं, उनकी झोपड़ियों को जला के बताना पड़ता है, उनको इंसान का पेशाब पिलाकर बताना पड़ता है। अगर वो घोड़े पर बारात लेके गांव में आते हैं तो उनको डंडे मार के टांगे तोड़ के बताना पड़ता है कि वो घोड़े पर नहीं बैठ सकते। ठीक इसी तरह ब्लैक्स को अमेरिका में हर कुछ दिन में बताना पड़ता है कि देखो गोरों का मुकाबला मत करो। तो हिंसा, जब तक पेट्रियार्की है, हिंसा रहेगी या हिंसा का डर रहेगा। हम में से बहुतों का कभी बलात्कार नहीं हुआ, मगर कम से कम मैं तो कभी बलात्कार के डर से फ्री नहीं हुई। हमेशा रात को इधर उधर देखना पड़ता है। अपने देश में, अपने आजाद देश में
हमेशा देखना पड़ता है कि मेरे को पीछे से कोई पकड़ तो नहीं लेगा। अरे आजाद है क्या ये देश? मेरे लिए भी आजाद है क्या? तो मुझे हमेशा अपने देश में डर क्यों लगता है? अपने मोहल्ले में डर क्यों लगता है? और दोस्तों, सैकड़ों साल पहले हमारे यहाँ जो पेट्रियार्की थी, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल पेट्रियार्की, रिलीजन बेस्ड, कल्चर बेस्ड पेट्रियार्की। कहीं सती करवा दी, कहीं विधवा के सफेद कपड़े पहना के बाल उसके गंजे कर दिए, चूड़ियां तोड़ दी, और पूरी उम्र ऐसे रहो तुम जिंदा लाश। ट्रेडिशनल पेट्रियार्की। मगर पेट्रियार्की के रूप बदलते रहते हैं। आजकल एक इसका बड़ा जबरदस्त रूप है जिसमें पढ़ी लिखी मिडिल क्लास औरतें भी पूरी तरह से फंसी हुई हैं, जिसका नाम है कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की। कपड़ों के रंग क्या होंगे, जूतों के ढंग क्या होंगे, परफ्यूम की सुगंध क्या होगी, वो तमाम कॉल्ड कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की, जिसमें पोर्नोग्राफी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स $1 बिलियन इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री, लड़कों के लिए बंदूक, लड़कियों के लिए बार्बी डॉल। तो ये मत समझिए कि मॉडर्निटी के साथ पेट्रियार्की चली गई है या चली जा रही है। ये तब तक नहीं जाएगी जब तक आप और मैं मिलकर इसको धक्का नहीं देंगे। मगर ये कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की तो इतनी चालाक है कि पढ़ी लिखी औरतें इसके अंदर गले तक डूबी हुई हैं, कुछ तो गले के ऊपर तक। अगर पेट्रियार्की को चलाना है तो जेंडरिंग करनी पड़ेगी। जेंडरिंग क्या होता है? जेंडरिंग होता है कि कमला हसीन अगर जानकी देवी में भाषण देने आती है तो दुपट्टा लेकर आएगी, अगर कोई और घर से निकलती है तो लिपस्टिक लगा के जाएगी और ऐसी हील पहन के जाएगी ताकि चलने में उसको 10 मिनट का टाइम और लगे और अपने जहां जाना है वहां लेट पहुंचे। जेंडरिंग करनी पड़ेगी पूरी। आप कहीं पर प्रिंसिपल हैं, कहीं पर कॉलेज की हेड हैं, मगर घर जाके खाने का आपको ही पूछना पड़ेगा। आपके पार्टनर बैठे हुए हैं घर में, मगर वो नहीं कहेंगे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सब्जी है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं जेंडर। जेंडर क्या है? हमारी सामाजिक परिभाषा है। सेक्स हमारी बायोलॉजिकल परिभाषा है। मेरी जो सेक्स है वो फीमेल है। कैसे? 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं उसकी वजह से। मेरा वेजाइना है, पीनस नहीं है। मेरी बच्चेदानी है, यूट्रस है, और मेरे पास ब्रेस्ट्स हैं जिनसे मैं दूध पिलाती हूँ। मेरी ब्रेस्ट्स बॉलीवुड में नाचने के लिए नहीं बनी है। चोली के पीछे क्या है उस गाने के लिए नहीं बनी है। मेरी ब्रेस्ट से ये दुनिया पली है। आज हम उसको चाहे कुछ भी कह लें। मेरे भाई के जो सेक्स है वो मेल है, उसको पीनिस है। उस बेचारे को कुदरत ने ना तो यूट्रस दिया, ना ही कोई काम वाली ब्रेस्ट दी, और छोटे छोटे 2 निशान हैं उसके भी लगे हुए, मगर यूजलेस। उसमें से कुछ ही नहीं निकलता। वो है क्यों मुझे मालूम है, मगर मेरे पास टाइम नहीं है बताने का। तो मेरे भाई में, जिसकी वजह से वो राजा बेटा है, और मुझ में केवल 3 छोटे छोटे फर्क है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। उसका दिमाग मुझसे तेज नहीं है, वो मुझसे तेज भाग नहीं सकता, वो मुझसे तेज मोटरसाइकिल नहीं चला सकता अगर मैं चलाना सीख लूं। सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों की वजह से। बाकी उसका और मेरा जिस्म 95% एक जैसा है।
और कुदरत ने हम दोनों के शरीर फर्क क्यों बनाए, या पूरी दुनिया के मेल फीमेल के शरीर फर्क क्यों बनाए, किस चीज के लिए? ओनली फॉर वन थिंग, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अलावा कुदरत ने नहीं कहा कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और वाइस चांसलर कौन बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा और घर में खाना कौन बनाएगा और बाहर नौकरी कौन करेगा। कुदरत ने नहीं कहा। किसने कहा? पेट्रियार्की ने कहा। किस तरीके से कहा? जेंडरिंग करके कहा। मुझे ऐसे ही सरकारी स्कूल में भेज दिया जाएगा, मेरे भाई को अंग्रेजी मीडियम में भेजा जाएगा, मुझे बचा खुचा खाना दे दिया जाएगा, सबके बाद में उसको मक्खन वक्खन बढ़िया चिकन का टांग वांग दिया जाएगा ताकि ताकतवर बने, क्योंकि वो घर का मालिक है। मैं पराया धन हूं, मेरे ऊपर क्या टाइम वेस्ट करना। तो दोस्तों, कुदरत, नेचर हमारे अंदर भेद बनाती है। एक नर है, एक मादा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, भेद बनाती है। कुदरत भेदभाव नहीं करती। आज तक कुदरत ने नहीं कहा कि गोरे लोग सुपीरियर हैं, टॉल मैन आर हैंडसम, ऐसी ऐश्वर्या राय की नाक जो है वो सुपीरियर है, कमला हसीन की नाक इंफीरियर है। कुदरत ने नहीं कहा। कुदरत भेद बनाती है, डाइवर्सिटी बनाती है, समाज उसको भेदभाव में बदल देता है। तो जेंडर एक ऊपर से उड़ाई हुई चादर है जो पैदा होने के बाद हमको उड़ाई जाती है और हम समझते हैं कि ये नेचुरल है, और फिर हम पूरी उम्र उस जेंडर के बनाए रास्ते पर चलते हैं। तो दोस्तों, औरत को नीचा जेंडर दिखाता है, हमारी सेक्स नहीं दिखाती। हमारी सेक्स हमको कमतर नहीं बनाती, जेंडर बनाता है। इसलिए हमारी लड़ाई है फॉर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, नॉट सेमनेस। ओके, तो अब दोस्तों मैं चल रही हूं आगे। हाँ सॉरी, जेंडर पूरा का पूरा जो खेल है वो पावर का खेल है। पेट्रियार्की में जेंडर के थ्रू लड़कों को पावर दी जाती है और जेंडर के थ्रू लड़कियों से उनकी पावर ले ली जाती है। मैं खूब भाग सकती हूं, मैं ना भागूं इसके लिए क्या करेंगे वो? मुझे हील्स पहना देंगे, मुझे कपड़े ऐसे पहना देंगे कि मैं भाग ही ना सकूं, मेरे बालों की स्टाइल ऐसा कर देंगे कि मैं 1 घंटा बाल ही बनाती रहूंगी जब मेरा भाई बाहर जाके एक्सरसाइज कर रहा है। मैं मसल्स ना बनाऊं उसके लिए मुझे मेहंदी लगा के बैठा देंगे, मैं 3 घंटे मेहंदी ब्लडी सुखाती रहूंगी पेड़ पे चढ़ने की जगह। तो इस खूबसूरती के चंगुल में फंसाकर मेरी सारी ताकत छीन ली जाएगी और मुझे बाबी डॉल बनाने की कोशिश की जाएगी। बाबी डॉल, ब्रेस्ट इतनी बड़ी, किसके लिए ब्रेस्ट इतनी बड़ी? बाजार में ये ज्यादा बिकती है, इसे हस्बैंड अच्छा मिलेगा। कमर इतनी, हम औरतों को सिर्फ जिस्म बना दिया जाता है, सिर्फ बॉडी। और एक बार हम सिर्फ जिस्म बन गए तो इंसान तो नहीं बचे। इसीलिए तो दिल्ली की 80% औरतें कहती हैं कि उनको बस में इधर उधर नोचा जाता है। तो जिस्म तो हो सिर्फ, तो नोचने में क्या प्रॉब्लम है? आदिवासी इंसान नहीं है तो डैम बनाना है तो आदिवासी के घर के पास जाके बना लो ना। दलित इंसान नहीं है तो गटर साफ कराना है तो उसको डाल दो उसके अंदर, ये 2-4 मर जाते हैं, बट सो व्हाट, दे आर नॉट ह्यूमन,
ब्लैक्स इन अमेरिका, ठीक है यार, एक ओबामा प्रेसिडेंट बन गया होगा, एक के प्रेसिडेंट बनने से क्या होता है? इंडिया में भी एक दलित को प्रेसिडेंट बना देंगे तो क्या होता है तो गटर में रहने लायक। इनकी बेटियों को हाथरस में भी करो तो फलानी जगह भी करो। दे आर नॉट ह्यूमन एंड वी women are also not human. We are bodies and many of us have internalized this. हम भी खुद को सिर्फ बॉडी समझने लगते हैं और बॉडी को चमका के पहुंच जाते हैं कॉलेजेस अपने। और बॉडी नश्वर है, जितना मर्जी चमका लो, बूढ़ी होगी, बाल सफेद होंगे, कितने साल तक काले करेंगे, झुर्रियां पड़ेंगी, कितने साल तक सर्जरियां कराएंगे। Anyway, this is patriarchy very briefly. This is gender very briefly. Now, अब मैं आपको एक दूसरी जर्नी पे ले जा रही हूं। अब पेट्रियार्की और जेंडर का चश्मा लगा लो, एक तरफ पेट्रियार्की है ये, इधर जेंडर, दोनों एक ही चीज है। आंखें बंद करके अपने घर पहुंच जाओ और देखो कि यार आपके घर में पेट्रियार्की है क्या? आप लोग 172 लोग हैं, आपके घर में है क्या पेट्रियार्की? आपके साथ भी जेंडरिंग हुई है क्या? क्या आपने जेंडर की चादर पूरी तरह से ओढ़ी हुई है? बिंदियां लगाई हुई हैं, कानों में झुमके पहने हुए हैं, ये सब तमाशे करे हुए हैं, पुरुषों ने भी घर में ये सब तमाशे करे हुए हैं। ट्राई एंड थिंक। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं मदद करती हूं, नोट करना। अभी तो अनफॉर्चुनेटली तुम मुझे बता नहीं सकती हो, लेकिन घर जाके देखना, नोट्स बनाना और देखना कि क्या आंसर्स मिलते हैं। मैं पूछती हूँ सवाल कि घर में तुम्हारे पेट्रियार्की है कि नहीं है? घर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड किसको माना जाता है? मम्मी को कि पापा को? फैमिली का नाम माँ के नाम से है कि पापा के नाम से है? जो फ्लैट है अगर अपना या किराए का, तो किराए की डील किसके साथ है? और अगर अपना फ्लैट है तो फ्लैट किसके नाम पर है? कार, बैंक अकाउंट्स वगैरह वगैरह ज्यादातर किसके नाम पर है? मम्मी को उनके पापा ने प्रॉपर्टी दी थी क्या? नो। अगर तुम्हारे भाई भी हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बराबर की प्रॉपर्टी मिलेगी? मैं सवाल पूछ रही हूं, जरा नोट कर लेना अगर नोटबुक लाए हो तो, नहीं तो दिमाग में नोट करना और जरा रात को पूछना। माँ का नाम अपने पापा वाला है या फेरे लगा के पढ़ी लिखी माँ ने अपना नाम भी त्याग दिया था, अपना परिवार त्याग दिया था, और पढ़ी लिखी माँ ने कन्यादान करवाया था? हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि औरत और मर्द बराबर हैं, मगर उस कन्या का दान हुआ था और दान करके एक पुरुष ने उसको दूसरे पुरुष के हाथ में पकड़ा दिया था। पहले मेरी माँ का नाम पुराने वाले मालिक वाला था, यानी मेरे नाना। फिर मालिक बदल गया मेरी माँ का, मेरे पिता उनके नए मालिक हो गए। तो कागज, जैसे कार के कागज बदल देते हैं ना, कि ये कार फलाने साहब की थी, आज कार फलाने साहब की है, तो हमारी माओ के कागज भी बदले गए और नए मालिक का नाम मिल गया। क्या घर में कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है? फिजिकल ना होती हो, क्या इमोशनल, मेंटल? और क्या लड़के और मर्द घर का काम करते हैं, औरों की सेवा वाला काम करते हैं?
अपने से छोटे बच्चों को संभालते हैं क्या लड़के? नानी दादी का थोड़ा बहुत काम कर देते हैं क्या, या हुकुम चलाते? क्या लड़कों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि औरतों को प्रोटेक्ट करना है? और प्रोटेक्शन अगर थोड़ा सा हिल जाए तो वो प्रोटेक्शन की जगह कंट्रोल बन जाता है। कहां गई थी, इतनी देर से क्यों आई है? ये प्रोटेक्शन नहीं है, इसे कहते हैं कंट्रोल। और ये बॉयफ्रेंड, ये मुसलमान बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है तेरा? डिसऑनरेबल किलिंग करेंगे, नाम देंगे ऑनर किलिंग। क्या पिताजी या भाई माँ बहन की गालियां भी दे लेते हैं क्या? माँ की, बहन की, फलाने ढिकाने कर लेते हैं क्या बेचारे वो भी? और फिर त्योहार कैसे हैं? रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है, बहन अपना सिर में ढक के जेंडर का नाटक करके आ जाती है। कमाती है, भाई छोटा है, पैसे देती है उसको, पढ़ा रही है, लेकिन उस दिन वो खड़ा हो जाएगा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। अबे तेरी रक्षा तो यार मैं 10 साल से कर रही हूँ, कम वक्त, शक्ल तो देख अपनी, नाक बहरी तेरी। नहीं, वो रक्षा वो करेगा साल में 2 बार। मैं हर तरह से उससे आगे हूं, मगर साल में 2 बार मुझे मेरी जगह बता दी जाएगी। भाई दूज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, करवा चौथ के दिन मेरी जगह बता दी जाएगी। और तमाम जितने त्योहार आते हैं उसमें देख लीजिए कि वो पेट्रियार्की से मुक्त नहीं है। तो ये परिवार है हमारे। परिवार जहां समानता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, परिवार जहां डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, परिवार जहां इंसान बनाए जाने चाहिए। और दोस्तों, आपका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानती हूं कि जहां समानता नहीं है वहां प्यार नहीं हो सकता, डर हो सकता है, डर हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम जाते हैं स्कूल्स में। तो ऐसे घर से निकला हुआ लड़का क्या स्कूल में लड़की को अपने बराबर समझ सकता है? क्या कॉलेज में उसको अपने बराबर समझ सकता है? क्या बस में बैठी हुई लड़की को इज्जत दे सकता है जिसने अपने घर में इज्जत नहीं दी? संविधान कहता है समानता, हम कहते हैं नहीं नहीं, समानता कैसे? हम तो पितृसत्ता में विश्वास रखते हैं, हम तो जातिवाद में विश्वास रखते हैं, हम तो अपने अपने धर्म में विश्वास रखते हैं। संविधान कुछ नहीं होता। और वायलेंस की क्या स्थिति है हमारे देश में? चाइना के बाद हम हैं जिन्होंने 60 मिलियन 6 करोड़ 600 लाख लड़कियों और औरतों को जीने नहीं दिया। कभी भ्रूण में मार दिया, कभी डाउरी के नाम पर मार दिया, कभी बलात्कार करके जला दिया, कभी खाना कम दे के मार दिया, कभी 14-15 साल में बच्चे पैदा करवा के मार दिया, कभी मैल न्यूट्रिशन से मार दिया। 60 million women are missing in India. गवर्नमेंट फिगर्स हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस 35 से 40% घरों में होती है। यानी हम 170 लोग हैं, हमारे भी 30-35% परिवारों में होती होगी। मेरे पास टाइम होता तो मैं इसी तरह आपको कास्ट पर भी ले जाती कि पेट्रियार्की और कास्ट का क्या जुड़ाव है। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर
जो मैंने सवाल पूछे हैं उनमें आधे के भी जवाब ऐसे हैं कि हाँ हमारे घर में पेट्रियार्की है। तो मैं पूछती हूँ आप लोगों से जो कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं कि क्या आप लोगों ने कन्यादान करवाया था? क्यों करवाया था? जरूरी था क्या? अगर आप में से जो टीचर्स हैं, आपके माँ या पिता गुजर गए तो आपने अंतिम संस्कार किया था क्या? अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? पढ़ी लिखी हो यार, एमए हो, कुछ की तो पीएचडी होगी। करवा चौथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? पार्टनर भी करते हैं क्या आपके लिए व्रत? या उन्हें आपके मरने की जीने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको तो कभी विधवा बना के सफेद साड़ी में नहीं बैठाया जाएगा। वो जानते हैं कि अगर उनका बच्चा नहीं है तो शादी जल्दी कर दी जाएगी, और अगर बच्चे हैं तो शादी उससे भी जल्दी कर दी जाएगी। नए मॉडल की बीवी आएगी, नया डाउरी आएगी। तो मेरा सवाल है कि हम क्यों ये सब करते जाते हैं? क्यों नहीं स्टॉप लगाते? क्यों नहीं इन चीजों में, घर की चीजों में? बाहर कपड़े तो मॉडर्न पहन के जाते हैं, देखने में तो ऐसी झर्राट लगती है ये जैसे बड़ी मॉडर्न। एक किताब है जिसका नाम लिख लीजिए, उसका नाम है इंग्लिश में चुप। हिंदी शब्द है लेकिन किताब इंग्लिश में है, चुप। दीपा नारायण की किताब है। उन्होंने 650 खूब पढ़ी लिखी मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास औरतों को इंटरव्यू किया और रिजल्ट निकला कि उनकी मॉडर्निटी स्किन डीप है। वो तमाम वो चीजें करती हैं जो मैंने आपको गिनवाई। शादी के बाद नाम चेंज, कन्यादान, फलाना ढिकाना, महंगी शादियां, 50,000 रुपए का ब्राइडल मेकअप। तो दूसरे दिन मियाँ देखता है शादी के बाद ब्राइडल मेकअप जब धो लेती है, अरे यार ये तो झूठी औरत आ गई, वो कल रात को तो किसी और से शादी हुई थी मेरी। आप जिंदगी शुरू कर रही हैं नकल पर, झूठ बोलकर। तो हम क्यों नहीं करते? एक चीज जो कभी कभी मुझे लगता है कि हम इसलिए चेंज बदलते नहीं है कि हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने लोग क्या कहेंगे पर एक कविता लिखी है, पिछले साल लिखी थी। मैं सुनाती हूं, जरा ध्यान से सुनना और अपने बारे में सोचना, क्योंकि मैं ये मानती हूं दोस्तों, आजकल जब रेप की बात होती है तो सारी जनता, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोर्ट कुछ नहीं कर रहे। And I'm amazed at these questions. पुलिस, गवर्नमेंट, जजेस रेप के बाद होते हैं। आप ये क्यों नहीं पूछते कि रेप क्यों हो रहे हैं और रेपिस्ट कहां से आ रहे हैं? कि चाइनीज हैं वो रेपिस्ट? पेड़ों पे से उतर रहे हैं कि आप और मेरे घर से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? क्या वो 40% है जो घरों में मारते हैं अपनी बीवियों को? आ कहां से रहे हैं? आपके और मेरे घर से आ रहे हैं। और मैं ये कहती हूं कि रेप कोई सरकार ने पूरी दुनिया में आज तक नहीं रोका, ना वो रोक सकती है। रेप सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज रोक सकती हैं, स्कूल्स रोक सकते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस रोक सकते हैं। हम भारत के लोग रेप रोक सकते हैं, भारत की सरकार रेप नहीं रोक सकती, क्योंकि सरकार के बच्चे रेप नहीं करते, आपके और मेरे बच्चे रेप करते हैं। और दोस्तों,
कोई भी लड़का या मर्द बलात्कारी पैदा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू मी। हिंसक पैदा नहीं होता। Men are not biologically violent. अगर men biologically violent होते तो बुद्ध कहां से आते, गुरु नानक कहां से आते, प्रॉफिट मोहम्मद कहां से आते, बाबा साहब अम्बेडकर कहां से आते, फूले कहां से आते, पेरियार कहां से आते? दे आर नॉट। तो रेपिस्टों ने कौन बनाता है? हम, परिवार, समाज, मीडिया, आइटम नंबर्स, पोर्नोग्राफी। हम क्यों नहीं बदलते? लोग क्या कहेंगे? तो इस कविता का टाइटल है लोग क्या कहेंगे या मैं क्या कहूंगी। डरती रही मैं बरसों कि लोग क्या कहेंगे, रोकती रही मैं खुद को कि लोग क्या कहेंगे, सेंसर करती रही खुद को कि लोग क्या कहेंगे, पत्थर रखती रही मैं दिल पर कि लोग क्या कहेंगे। जब दिल पर रखे पत्थरों से दिल पत्थरा गया, जब सेल्फ सेंसरशिप करते करते दिमाग घबरा गया, जब रोक रोक कर खुद को जीवन पिंजरा सा बन गया, तब सोचा किया क्या है मेरे लिए लोगों ने, दिया क्या है मुझे लोगों ने, पाला कितना है मुझे लोगों ने, संभाला कितना है मुझे लोगों ने। जवाब साफ थे मेरे सामने, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है लोगों ने, मुझे कुछ भी तो नहीं दिया है लोगों ने। इसीलिए अब मैं नहीं सोचती लोग क्या कहेंगे, अब मैं नहीं पूछती लोग क्या कहेंगे, अब मैं पूछती हूं मेरे अंदर की आवाज क्या कहेगी, मेरे अपने क्या कहेंगे, मेरे सपने क्या कहेंगे। मैंने कोशिश की है अपना आत्मसम्मान जगाने की, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की। अब सारे फैसले मेरे अपने हैं, सारे रास्ते मेरे अपने हैं, सारी मंजिलें मेरी अपनी हैं, सारी हार सारी जीत मेरी अपनी है। लोग अभी भी कुछ ना कुछ तो कहते हैं, पर अब हम तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, ना लोगों की सुनते हैं, ना उनको हम कुछ कहते हैं। तो जरा सोचिए कि क्या हम भी लोग क्या कहेंगे चक्कर में रुक रहे हैं। मैं अपने बारे में 2-3 बातें बताती चलूं, फिर मैं रुकती हूं। मैंने अपने घर में राखी के त्योहार को और सुंदर बना दिया, उसमें से असमानता निकाल दी, समानता डाल दी। भाई बहन को राखी बांधते हैं, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे, साथ देंगे। और दोस्तों, भाइयों ने कब कितनी रक्षा की है बहनों की मुझे नहीं मालूम, मगर हर घर में बहन अपने भाई की रक्षा करती है। उसकी चाय बनाकर, उसके कपड़े धोकर, पापा से उसकी मार कम करवाकर, उसके लिए झूठ बोलकर, खाना बनाकर, हर किस्म से। तो रक्षा का मतलब डंडा लेके बहन की रक्षा करना नहीं होता। रक्षा का मतलब होता है प्यार करना, सहारा देना, खाना देना, बीमार हो तो सर पर हाथ फेरना, प्यार करना। और ये भाई भी कर सकते हैं, बहनें भी कर सकते हैं।
भाई दूज, भैया दूज का नाम मैंने 40 साल पहले बदल दिया था। मेरी बेटी जब किंडरगार्टन में गई तो भैया दूज आया तो उन्होंने कहा भैया दूज भैया दूज। मैंने उसको कहा जाके बोल देना कि भैया दूज तो नाम हो ही नहीं सकता इस त्योहार का, क्योंकि बहन के बिना ये त्योहार होता ही नहीं है। तो इस त्योहार का नाम तो बहन भाई दूज होना चाहिए, इसका नाम ही गलत है। और बहन भाई को टीका लगाए लंबा सारा, भाई बहन को टीका लगाए लंबा सारा, दोनों गले में हाथ डाले आगे बढ़े। ठीक इसी तरह करवा चौथ करना है तो दोनों सुबह उठ के सहरी खाएं, दिन भर एक दूसरे की मोहब्बत में भूखे रहें, तो देखिएगा कि क्या मोहब्बत खिलेगी दोनों के चेहरों पर। खैर करवा चौथ की तो मैं पास नहीं गई। फॉर्चुनेटली मेरे घर में मेंस्ट्रुएशन पर किसी प्रकार का चक्कर नहीं था। मैंने अपनी माँ और अपनी सास दोनों की अर्थी को कंधा दिया। मेरी माँ की अग्नि दी भाइयों के साथ मिलकर। ये सब किया और मैं जिंदा हूं, देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर मैं मॉडेस्टी छोड़ूं तो कहूं कि मेरी तो शायद इस सब की वजह से इज्जत बढ़ गई है। देखो ना, ये आपका कॉलेज मुझे चौथी बार बुला रहा है, मैंने ऐसी गड़बड़ें करी फिर भी। तो मैं यहाँ रुकती हूं और आपका धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से। और अगर कुछ सवाल है तो मैं बड़ी खुशी से उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। निर्मला जी, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? ओके, किसी को नहीं पूछना? I think everybody is just absorbing the full weight of what you've said. But it could be that people have other questions that they are troubled by. I can see that Usha Prasad ji has raised her hand and she might want to ask something. You can ask anything. You can ask anything, not necessarily related to what Kamala ji has said, but something that you feel strongly about and she can answer. There are some questions in the chat box. So girls, would you like to take them on and read them? कैसे, मुझे लगता है कि अगर टीचर इंचार्ज वो क्वेश्चन पढ़ दें ना तो it might be easy. Shreyasi ने पूछा है, when we talk about gender equity, is it confined to the binaries given the wide spectrum that gender is? Obviously, जेंडर में हम पहली बात तो दो को ही नॉर्मल समझते हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। ट्रांस को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। तो आई फील दैट व्हेन वी टॉक ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, वी शुड टॉक अबाउट ऑल जेंडर्स, फेमिनिन, मैस्कुलिन एंड ट्रांस. Obviously, it should be about all of them. And in 40 minutes, I cannot go into all the things about gender, all the things about patriarchy. I mean, what I have done with you in 40 minutes, in my courses, I take at least 2 or 3 days just for talking about these things. So definitely we have to talk about all genders and not just the binary. Thank you. Thank you, Kamala ji. Himanshi, are there any questions in the chat box, or if the participants can unmute themselves and ask? Yes, ma'am, sure. If anybody has any question, please feel free to ask, or you can even tell ma'am how you felt after the session, after listening to her poem. Ma'am, I especially made my mother come here and sit with me during the session. Ki mama, aap bhi suno. It is so beautiful and so overwhelming that no, it was wonderful, ma'am. Thank you so much. Mamma ko salam.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. नमस्ते मैम, मेरा नाम निहारिका है। जी मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से हूँ और मैं अपने 3rd ईयर में हूँ। और मैं ये आपको कहना चाहती थी कि मैं 12 या 13 साल की थी जब मैंने आपको पहली बार टीवी पे सुना था। सत्यमेव जयते में जब आप आए थे, अपने आमिर खान को अपना इंटरव्यू दिया था, उस टाइम मैंने आपको सबसे पहली बार ही सुना था और मेरी मम्मी ने मुझे स्पेसिफिकली बुलाया था कि आके बैठ के देखो इसको, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे जो बात वहाँ पे की थी, उससे मैं इतना प्रोत्साहित हुई थी कि उस टाइम इंटरनेट का मेरे पास इतना एक्सेस नहीं था ताकि मैं आपकी और चीजें पढ़ पाऊँ। पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे स्कूल में आपकी एक रीडिंग दी गई थी, अंडरस्टैंडिंग जेंडर। तो वो मैंने कम से कम 2 या 3 बार ही पढ़ी होगी। मैं 16 या 17 साल की थी उस टाइम। उससे मेरे को इतना डेवलपमेंट हुआ मेरा जेंडर के बारे में, इतना मैंने सेक्स और जेंडर का समझा उस वक्त कि मैंने एक तो अपनी पूरी जो मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, मेरा वो जो मन था, मैं उससे बिल्कुल मैंने डाइवर्ट करके मैं सोशियोलॉजी मैंने लिया। क्योंकि आपकी वो बुक पढ़ के मुझे इतना मैं इंस्पायर हुई कि मुझे कुछ तो करना है अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कि सोशियोलॉजी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर मी टू काइंड ऑफ बिल्ड अपॉन। एंड कॉलेज में भी आके फिर सोशियोलॉजी एंड HDFE जैसा सब्जेक्ट मुझे मिला और उसकी वजह से मुझे और चीजें समझ में आई। तो मैं आज जो और अंडरस्टैंडिंग जेंडर हमने कोर्स JDMC के थ्रू भी किया है मेरे दोस्तों ने और यहाँ पे JDMC में, तो उसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपको आज भी सुन के, जो मुझे 12 या 13 साल की जब मैं थी, तब जो मुझे एक्साइटमेंट था और जो चीजें मुझे समझ में आई और जो इंस्पिरेशन तब मुझे मिली आपसे, वो आज भी मिली थी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और JDMC को मैं बहुत अपने तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने कमला भसीन मैम को बुलाया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू निहारिका, वेरी स्वीट ऑफ यू टू शेयर दिस विद मी। Good evening, ma'am. जी Ma'am, this side Soumya from Sociology Honors. Ma'am, I am so influenced by you. I also want to share my work, which I have started to have equal gender. Ma'am, I have started Succeed India with my sister, जहाँ पे मैं सबको बताना चाहती हूँ कि not only girls and boys, there are also transgenders. And we need to be equalize everybody, more probably not equalize, we should like focus on the equity first, then equality comes. And this is my work that I have started. थैंक यू सौम्या, मे यू सक्सीड इन सक्सीड इंडिया। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. जी Namaskar, Kamla ji. This is Geeta and I teach at IP College. जी I think like others, I have also been hearing you since the time I was student. I was a student at Lady Avin College and that was the first time I heard you. And if you, I mean, you would second that कि उनका भी हमारा जो वहाँ पर human development का department है, we carry the same philosophy that you have been carrying. So there are these two important things that I wish to share with you and with everyone. You know, whenever I listen to the term equity, okay, and when people talk about लड़कियों को मौका देना, लड़कियों को opportunities देना, तो मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत खराब लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये क्यों आइडियोलॉजी है कि हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम लड़कियों के लिए या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आई मीन मुझे सिर्फ एक इमेच्योर माइंड से ये लगता है कि हमें कुछ फालतू नहीं करना है, जो रिस्ट्रिक्शंस हमने डाली है ना, बस हमें वो उठानी है, हमारे को और कुछ नहीं करना है। हमने किसी लड़की को मौका नहीं देना है, बस जो हमने उसका मौका चुरा के अपनी पॉकेट्स में, पैट्रियार्की की पॉकेट्स में रखा हुआ है ना, वी जस्ट हैव टू लूज इन आवर पॉकेट्स, यू नो, नथिंग एल्स हैज टू बी डन। सो और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे ये लगता है कि बहुत बार, आई मीन नाउ आई एम अ मदर एंड व्हेन आई फर्स्ट हर्ड यू आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई वाज अ वेरी, यू नो, लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स कि मैं ये बदल दूंगी, वो बदल दूंगी। एंड इनफैक्ट जब हम बच्चों को ये जेंडर वाला पेपर पढ़ाते हैं तो कहीं और चले जाते हैं। आई मीन बात करते करते हम इतने भावुक हो जाते हैं, आई मीन ऑल ऑफ अस आई थिंक।
तो मुझे ऐसा लगता है फिर when we come back to our home we succumb to the boundaries. I mean कहीं ना कहीं ऐसा That's right. होता है. And for a Completely. person like me also, I lost my father at a very young age and I was like, I mean I could never understand कि पिता का ना होना और कैसे खराब है पितृ सत्ता में. मतलब मुझे ऐसा महसूस होता था कि जब मैं दूसरों से बात करती थी कि पेट्रियार्की मतलब फादर ऐसा कहते हैं, तो अगर फादर ऐसा नहीं कह रहे हैं, फादर नहीं है कहने वाले, तो और 10 फादर्स हैं who would you know tell you what to do and what not to do. So मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोबारा हमसे ये सब बातें करती हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम वापस आ जाते हैं. आई मीन वी कम बैक टू आवर ट्रैक्स कि हाँ हमारा ये मिशन है, हमने ऐसे करना है, हमने ये सब बातें करनी है. सो थैंक यू सो मच. आई मीन इट्स सो ओवरवेलमिंग टू लिसन टू यू. थैंक यू सो मच मैम. मैं मीता की बात से जोड़कर एक दो बातें कहना चाहती हूँ. मुझे याद आ रही है कहानी मीता की बात से कि एक लैंडलॉर्ड अपने मजदूर के कंधे पर बैठा हुआ है और बैठे बैठे बहुत उदार हो जाता है लैंडलॉर्ड, जो उसके कंधे पर बैठ के जा रहा है. कहता है अच्छा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. कहता है सर आप बस मेरे ऊपर से उतर जाओ और आप जरूरत नहीं, आप मेरे ऊपर से उतर जाओ बस. दिस इज व्हाट इट इज. आप हमारे ऊपर से उतर जाओ, इक्विटी इक्वालिटी सब हो जाएगा. अब जैसे लोग बहुत चिढ़ते हैं कि ये रिजर्वेशन की क्यों बात होती है, तो उनको कोई समझाए कि यार पुरुषों, यार ब्राह्मणों, आप तो 3000 साल से स्ट्रक्चरल रिजर्वेशन लेके बैठे हो ना. आज भी अगर आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मर्द कितने हैं और ब्राह्मण कितने हैं. I know about 10 years ago, more than 80% Brahmins are Supreme Court judges. और आप इतने हजार सालों से सांप के जैसे कुंडली मार के हर पोजीशन पर बैठे हो. इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रिजर्वेशन. और अब औरत को कुछ देने की बात है, दलित को कुछ देने की बात है, ब्लैक्स को कुछ देने की बात है, तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनका कुछ ले गए, क्योंकि ये 3000 साल से बैठे हैं ना वो पूरी दुनिया के. सो आई थिंक मीता, one just has to talk about these things to people, make them understand. और हमें अब तो पता लग ही गया होगा कोई पावर होता नहीं है. पावर हमेशा लेनी पड़ती है क्योंकि लोगों के अंदर पावर से बहुत मोहब्बत हो गई है. मोहब्बत की पावर को लोग नहीं समझते. और पिछले 20 साल में संगत में हमारा स्लोगन है नॉट लव ऑफ पावर, पावर ऑफ लव. नॉट लव ऑफ पावर, पावर ऑफ लव. आप किसी भी सोशल सिस्टम को देख लें, जितनी वायलेंस है वो लव ऑफ पावर के कारण है. Brahmins love their power, whites love their power, men love their power, upper class women like me love my power over the people who work with me, under me. If we would just reverse it and think of power of love, which every spiritual person has spoken, which everyone has said, अगर कहीं सुकून मिलेगा, अगर कहीं खुशी मिलेगी तो मोहब्बत से मिलेगी. पावर से खुशी ना आज तक किसी को मिली है, ना मिलेगी. मुझसे लिख के ले लो. थैंक यू मीता, गुड टू मीट यू. मैम यहाँ पर आपकी बात से एक और चीज अगर मुझे इजाजत है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी. मैम बहुत पहले कभी एक कहावत सुनी थी कि हर माँ चाहती है भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में. तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये पेट्रियार्की की और ये सब बातें बताती हूँ ना, तो मैं ये देखती हूँ कि समवेयर इट इज नॉट एक्चुअलाइज्ड. यू नो, वी मे टॉक अबाउट इट, वी मे बी वेरी पैशनेट अबाउट ब्रेकिंग द साइलेंस एट होम, बट समहाउ वी फील ओके लेट मी बी साइलेंट, दूसरा शायद अपना साइलेंस छोड़ दे.
तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने स्टूडेंट से भी ऐसे बातें करती हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं कि मैम मगर मेरी शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए, हाँ पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, मगर एटलीस्ट मैम मैं तो एक ही लड़की हूँ अपने पेरेंट्स की, मेरी शादी तो इस तरह से होनी चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप ना मतलब ये जरूर ये बच्चे ये समझें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कि ये सिर्फ बात करने वाली बात नहीं है। आई मीन दुनिया को जलाने के लिए खुद जलना पड़ता है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू वॉक ऑन द अंगारास, अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि कोई मसीहा उतरेगा और वो हमारी मदद करेगा और हमें लेके जाएगा कि चलिए हम आपको सपनों के शहर में लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुद तपना पड़ता है उस तप में, तभी हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। देयर इज नो अदर पर्सन हु इज गोइंग टू कम टू आवर लाइफ एंड टेल अस कि ओके लेट मी इंप्रूव योर लाइफ। That's it. Thank you so much. देखो पूरा एक एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा कंज्यूमरिस्टिक बन गया है। मुझे याद है कि 60s में जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, 15, 16, 17 साल की थी, तो बहुत कमी थी। तो ये था कि साहब शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। और उस टाइम से लेके आज तक दोस्तों मैंने कोई भी पैसे वाली शादी अटेंड नहीं करी है, 65 से लेके 2020, एक्सेप्ट फॉर 2 और 3 जिसमें कुछ दूसरे वजूहात थे, कुछ दूसरे कारण थे जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। मैंने अपने नेव्यूज एंड नीसेस की शादियां अटेंड नहीं करी बिकॉज दे वर ऑब्सीनली एक्सपेंसिव। आई कुड सी टेरेबल, आई मीन आई कांट सी देम। और फिर इन शादियों में जिस तरह से औरतें क्रिसमस केक बन के घूमती हैं, मतलब मुझे उनको देखा नहीं जाता, उनके कपड़ों को, उनके जेवरों को। प्लस मेरे पास वो कपड़े भी नहीं है, मतलब मैं क्या तो पहन के जाऊं वहां पर। तो मैंने कसम से बता रही हूँ आपको, पिछले 60 साल में मैंने 4 शादियां अटेंड की होंगी। और अगर कोई हिंदू मुसलमान की शादी है या इंटरकास्ट शादी है और कोर्ट में है, मैं वहां सबसे पहले जाके खड़ी हो जाऊंगी। मगर दीज आर ऑब्सीन। और हमने तो 4 साल पहले एक कैंपेन शुरू किया था अबाउट प्रॉपर्टी फॉर हर। आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन विच इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर्टी फॉर हर। तो उसमें था कि ना दहेज ना महंगी शादी, ना दहेज ना महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी, बात खत्म। जी हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, वेरी गुड। बेटी दिल में, बेटी विल में। सिर्फ दिल में रखने से कुछ नहीं होगा। बेटी दिल में, बेटी विल में, बात कर लो फिर आगे चलेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। एनीवन एल्स हु विशेस? May I say something? Ma'am, may I? Nimi, may I say something? Yes, ma'am, please. Dr. Pal, please. Yeah. I just wanted to say कि कमला जी वैसे तो कुछ सवाल हैं चैट बॉक्स में और मैं चाहूंगी कि आप उन पर गौर करें। एक सवाल था रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन बॉलीवुड, हैज इट चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ विमेन, और एक सवाल है, और वो ये सब सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, that do poets have a special role, so basically the role of artist. But before you answer that, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ अभी भी 150 लोग हैं और मैं चाहती हूँ एक चिट्ठी पढ़ने के लिए जो मुझे इस वीकेंड मिला है by mail, and I'm reading it out and I want you to know how proud I feel कि मेरे कॉलेज में मुझे कभी कदार ऐसी चिट्ठियां भी मिलती हैं। So this mail comes, there is no name of the student, though I can kind of guess it from the mail ID. Good evening ma'am, sorry ma'am, but बहुत दिनों से जो environment है हमारे देश का, उसके बारे में सोचकर मुझे guilty feel हो रहा है। शायद मैम आपके पास टाइम न हो मेरे मैसेज पढ़ने का, पर जब मैम मैंने आपकी फर्स्ट टाइम स्पीच सुनी थी, well I apparently became her inspiration, I don't know why. मैम हम स्टूडेंट्स ही फ्यूचर हैं, अगर हम अपने देश में सेफ नहीं फील करेंगे और हमारी फैमिली हमें सेफ्टी की वजह से हमें बाहर न जाने दें, तो हम अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे।
मैम डेली न्यूज आती है कि आज 10 मंथ्स गर्ल का रेप हुआ, 6 साल गर्ल का। मैम आई एम सो डिस्टर्ब। आज धोनी जो क्रिकेटर ही हमारे देश के आज मैच हारने पर उनकी 5 साल की बेटी का रेप करने की धमकी दे रहे हैं। मैम किसी भी समाज को बनाने का काम माता पिता टीचर करते हैं या संस्कार देते हैं। मैम हम क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे ऐसा लॉ आए कि अगर कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी तो उसकी बॉडी कांप जाए। अगेन सो सॉरी मैम, बट इन बातों ने मेरे माइंड में गहरा में घर कर लिया है। मैम वी हैव टू डू समथिंग। सॉरी मैम फॉर दिस वेस्ट मैसेज, बट मैम आपने कहा था कि मैं जानकी देवी फैमिली हमारी है और फैमिली सोचा मैंने आपको इसलिए पूछा कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं करते अपनी स्टूडेंट पावर का, क्यों मैम? I can't tell you, Kamla ji, since Sunday, I have been facing lots of administrative issues. But this particular letter and the passion, the anxiety of this student कि ये क्या हो रहा है और हम क्यों ऐसे सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं इसके लिए, ये ड्राइव देख के I can't tell you the level of contentment that I feel. I'm content because I feel कि अगर ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में तो our future is still not as bleak as we keep thinking it is. So I wanted all 150 people here to be aware that, you know, the youth today can speak up and how wonderful it is that they feel this way. And now, please, I'm sorry, Nimi, if I kind of monopolized this a little bit, but I thought I could take my turn after Meeta. So now, Kamla ji, there are these 2 questions about artists, performing artists like Bollywood films and the role of poets. Do you feel that they have a special role to play? Thank you for sharing the mail, Dr. Pal. Welcome. Thank you so much. तो सबसे पहले तो ये जो चिट्ठी थी, I mean, you can see the pain of this young woman, but once again, हम हर चीज का इलाज लॉ में ढूंढने लगते हैं। प्लीज जरा सोच लीजिए आप सब कि इलाज हमारे अंदर है, यहां से निकलेगा, क्योंकि बीमारी यहां है। कि ऐसा लॉ बनाइए कि कांपने लगे। अरे हमारे प्रोटेस्ट्स के बावजूद डेथ पेनल्टी आ गई रेप पर, कौन कांपा है उसके बाद? उसके बाद रेप्स बढ़े हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना मर्जी बड़ा कर दे, कोई सजा तो किसी को देंगे नहीं, 15-15 साल तक सजा नहीं देंगे। 2012 के केस में 8 साल लगा दिए इन्होंने सजा देने में। तो दोस्तों, लॉ, पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट, हम फेमिनिस्ट्स का सबसे बड़ा नारा है द पर्सनल इज द पॉलिटिकल। मैं जो करती हूं उसी से राजनीति बनती है, तो बदलाव मुझसे शुरू होना पड़ेगा। हमेशा दूसरों को उंगली दिखा के मैं बच जाऊं कि मैं तो दूध की धुली हूं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूं कि ये ऐसे ही प्यार से कह रही हूं, कोई बुरा ना माने प्लीज। पिछले 1.5 घंटे में 3-4 टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को बच्चा कहा। मैं जानती हूं कि वो बच्चा प्यार से कह रही हैं, मगर आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट द वर्ड्स वी यूज। मतलब आपका कोई भी स्टूडेंट बच्चा नहीं है, मोहब्बत में आप उनको कुछ भी कह लो। They are all, most of them are above 18, they are full citizens of India. And I would expect them to behave like Indian citizens, rather than be called bacha, bacha, bacha all the time. इसका अंग्रेजी में एक वर्ड है infantilization. I think instead of referring to them bacha each time, we should refer to them as adults, as citizens of India, who will be taking over from us very soon.
दो सवाल जो बताए, एक है कि क्या बॉलीवुड में कुछ बदला है। हाँ, 5-10%, 10 तो शायद ज्यादा हो जाएगा, 5-1% बदला है। देखिए, मुश्किल ये है कि बॉलीवुड, मीडिया, पोर्नोग्राफी, ये धंधा है, मुनाफाखोरी का धंधा। तो वो वही सौंपते हैं जो वी द पीपल ऑफ इंडिया वांट। तो वो तो यही कहते हैं कि भाई हाँ, हम आइटम नंबर दिखाते हैं, क्योंकि बिना आइटम नंबर के हमारे मर्द और औरतें आते नहीं है। हम रेप दिखाते हैं क्योंकि लोगों को मजा आता है, वो सारा की सारा जनता के ऊपर डाल देते हैं। मगर अब उनको ये पता है कि कुछ थोड़ी बहुत ऑडियंस इक्वालिटी भी पसंद करती है, तो वो हमारे लिए भी 5-1% दंगल, पिंक, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये हमारे LGBTIQ के लोगों के लिए, इस तरह एक बहुत खूबसूरत फिल्म डोर, ऐसे ही मतलब 5% फिल्म्स। बाकी फिल्म्स अनफॉर्चुनेटली वही स्टीरियोटाइप्स ऑफ विमेन, वही स्टीरियोटाइप्स ऑफ मेन, वही आइटम नंबर्स वेयर ऑलमोस्ट fornication is taking place on stage। मगर मैं ब्लेम बॉलीवुड को नहीं कर सकती, मैं फिर से आई हैव टू ब्लेम वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो जाके उनको 100 करोड़ का बिजनेस देते हैं, 200 करोड़ का बिजनेस देते हैं। आप बिजनेस देना बंद कर दें, कल से ये फिल्में बंद हो जाएं। आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स, आई थिंक हर एक का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स जो यहाँ बैठी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है जिंदगी में, हर लेवल के टीचर का, हर एक का, और ठीक इसी तरह आर्टिस्ट्स और पोएट्स का भी। लेकिन क्या सब आर्टिस्ट और पोएट्स बदलाव चाहते हैं, या पोएट्स और आर्टिस्ट भी पेट्रियार्कल हो सकते हैं? कोई भी पेट्रियार्कल हो सकता है, पोएट भी पेट्रियार्कल हो सकते हैं, जो आपको पढ़ाएं कि औरत हो तुम, नारी जीवन यही तुम्हारी हाय कहानी, आंचल में है दूध, फलाने में पानी, आंखों में पानी, मतलब यही कहानी है तुम्हारी। और खूब लड़ी मर्दानी, मतलब कोई औरत कोई अच्छा काम कर दे तो वो मर्दानी है, मैस्कुलिन है। तो poets and artists can play a very important role, provided they believe in equality, they believe in justice। तो वो जरूर बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं, बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। आजकल आप देखिए कि फैज अहमद फैज की कितनी नज़में गाई जाती हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, इसी तरह मेरा रंग दे बसंती चोला। सो यस। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों देखो, बदलाव जो आते हैं ना, वो मेजॉरिटी नहीं लाती। सबसे पहले बदलाव स्मॉल माइनॉरिटी लाती है, फिर वो अपने साथ मेजॉरिटी को मिलाती है। गांधी जी उठे, लोगों को जोड़ा। इसी तरह किसी भी मूवमेंट में, सोशलिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट, फ्यू पीपल, कार्ल मार्क्स एंड फ्यू अदर्स, जो ये काम करते हैं। दलित मूवमेंट में दलित लोग, LGBTIQ में वो लोग। तो मुझे लगता है कि एक इंसान भी बदलाव ला सकती है, और हमें अपनी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इंसान कैन बी फेमिनिन, इंसान भी बदलाव ला सकती है। तो हमें अपनी भाषा पर ध्यान देना है। मुझे लगता है कि हमारी भाषा बहुत ही ज्यादा पेट्रियार्कल है। दोस्तों 5 बजने वाले हैं
और मैं आपके चैट्स देख रही थी, एक चैट पे मेरी नजर पड़ी, तो एक हमारे दोस्त ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी एक कविता सुनाऊं, और उसने उस कविता का नाम भी दिया है। तो मैं वो कविता दिखाऊं उसके पहले, मैं सुनाऊं उसके पहले मैं एक बात और कह दूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथियों ने एक YouTube चैनल बना दी है जिसपे तमाम कविताएं, मेरी टेड टॉक्स, दूसरे लंबे लंबे लेक्चर्स वगैरह हैं। उसका नाम है YouTube पर कमला भसीन ऑफिशियल। तो अगर आप में से कोई देखना चाहे, और बहुत सी चीजें हिंदी में भी हैं, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हिंदी में भी बोलूं, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत मटेरियल है। मैंने टेड टॉक्स भी हिंदी में दी है, क्योंकि 99% ऑफ देम आर इन इंग्लिश, तो बेचारे नॉन इंग्लिश वाले कहाँ जाएंगे। तो जिस कविता की उन्होंने मांग की है वो है क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। और मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की कॉलेज आए तो अगर उसके लिए पढ़ने का ये मतलब हो जो इस कविता में है, तो बाय गॉड मैं कहती हूँ पेट्रियार्की दिखाई नहीं देगी 5 साल बाद। तो एक पिता अपनी बेटी को पूछता है, पढ़ना है पढ़ना है, अरे तुम्हें क्यों पढ़ना है? पढ़ने को बेटे काफी हैं, मूछों वाले, पढ़ने को बेटे काफी है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? बेटी को थोड़ा ताव आ गया, बोली जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। यानी अगर मैं लड़का होती तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी पढ़ने की, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। और फिर वो जवाब देती है कि पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है, मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है, सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है, और कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है, मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही घड़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है, कई जोर जुल्म को समझना है सो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है, मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है, हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, मीरा राबिया का गाना गाना है सो पढ़ना है, मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है, और अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है। Thank you, Kamla ji. Thank you so much for the lovely poem. जी. Any more questions? Yes, ma'am. Ma'am, there's one question from Rajni ma'am in the chat section which said, भारतीय स्तंभों में ब्राह्मणवाड़ी प्रत्यय सत्ता पर भी प्रकाश डालिए। आई एम सॉरी अगर थोड़ी हिंदी इधर उधर हो गई, बट मैम ने एक्चुअली ऑलरेडी बोला है इसके बारे में। Yes, ma'am. But that was the question, so I thought I will bring it in. I'll answer this. ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। देखिए ऐसा है, आजकल हम इंटरसेक्शनैलिटी की बहुत बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब है कि हमारे समाज में कई सोशल सिस्टम्स हैं जो दबाते हैं लोगों को। पेट्रियार्की इज वन ऑफ देम, men dominating women, caste, so-called upper castes, I call them exploiting castes,
dominating the exploited castes, race, whites exploiting the black people, colonizing them, exploiting them, oppressing them, and of course the rich dominating the poor, majority religion people dominating the minority, etc. तो जब हम ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की बात करते हैं तो हम कास्ट और पेट्रियार्की का जुड़ाव देखते हैं, और इसको कहते ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है, लेकिन एनी सो कॉल्ड अपर कास्ट। तो हाथरस का जो केस है वो है क्या, कास्ट एंड पेट्रियार्की कमिंग टुगेदर। मी टू, जिसमें कोई जर्नलिस्ट बॉस अपनी सबऑर्डिनेट विमेन जर्नलिस्ट को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वहां बॉस एंड वुमन, सो टू पावर स्ट्रक्चर्स। सो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में कास्ट एंड पेट्रियार्की का पावर स्ट्रक्चर है, वो मर्द भी है और वो पावरफुल जाति का भी है। White men raping black women forever, for centuries, the power of the white race and the power of patriarchy. So like that it goes, and those of us feminists who are intersectional, we believe कि patriarchy को अकेले हराया नहीं जा सकता। अगर हमने patriarchy को हराना है तो कास्ट को भी हराना होगा, क्लास को भी हराना होगा, रेस को भी हराना होगा, क्योंकि ये सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़कर औरत पर और उनके मर्दों पर जुल्म करते हैं। और दोस्तों, मैं ये मानती हूं, मेरे पास टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि पेट्रियार्की जितना तो नहीं, पेट्रियार्की अगर औरतों का भी बैंड बजाती है तो वो मर्दों का भी पूरी तरह से बैंड बजाती है। अगर मैं रूहानी तौर से बोलूं, स्पिरिचुअल तौर से बोलूं, तो मैं कहूंगी कि वो मर्दों का ज्यादा बैंड बजाती है। कैसे? अब जैसे अगर मेरा बलात्कार हो जाता है तो मैं तो परपेट्रेटर तो नहीं हूं ना, मैंने तो बलात्कार नहीं किया ना, मेरे ऊपर तो हुआ। तो ठीक है यार, कुछ भी हो सकता है, मुझे कैंसर भी हो सकता है, कोई बलात्कार भी कर सकता है, हो गया, ठीक है। वॉश योरसेल्फ, गेट अ टेस्ट डन, इफ यू वांट टू गो टू द पुलिस गो, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन इन लाइफ। ऐसी क्या बात है? लेकिन जो रेपिस्ट है वो तो करता है, तो करने वाला तो खत्म हो गया ना अंदर से। I mean, if I could rape a 2-year-old child, would I be a human being? I beating my lawfully married wife, am I a human being? बस में मैं किसी औरत की ब्रेस्ट को हाथ लगा के आनंद पा रहा हूं। यार, साइकाइट्रिस्ट के पास जा भाई, तू बीमार है, यू आर नॉट वेल, यू नीड ट्रीटमेंट। बिकॉज हमें तो यार मतलब बस में किसी मर्द के साथ छूते हैं, कुछ होते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। आप तो बिल्कुल। सो आई फील कि पेट्रियार्की में बहुत से बेचारे मर्द डीह्यूमनाइज हो गए, ब्रूटलाइज हो गए। औरतें ब्रूटलाइज पूरी तरह से नहीं हुई है, मगर अगर हम भी इसी सिस्टम में पावर ढूंढेंगे, मैं प्रिंसिपल बन गई हूं, मेरी पावर आ गई है, तो मैं इनको दिखाऊंगी पावर क्या होता है। तो हमें देखना यह होगा कि हम पावर के किस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। पावर के कई मॉडल हैं। कमला दीदी, मैं यहाँ इंटरप्ट करूं 2 सेकंड के लिए? नहीं, मैं को खत्म नाम लिया, व्हाई डिड यू टेक? क्योंकि मेरे सामने पावर वही है। नहीं,
यहाँ तो उल्टा हो गया है, यहाँ ये हो गया है कि प्रिंसिपल को बताया जाता है कि यू आर टोटली पावरलेस, आप तो आम आदमी से भी बदतर हो, सो डोंट बी अंडर एनी सच इल्यूजन्स। मैं बाहें ऊंची करके तुम्हारी मदद को आ रही हूँ, अब भी आ रही हूँ, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। गुड, आई नीड इट। दोस्तों, I think it's time that I say thank you very much. I have enjoyed myself, and I think I did tell Raj and Nirmala that देखो 1 घंटे तक सीमित मत रखना, थोड़ा बात करेंगे, बोलेंगे. So I'm glad we've taken time, but I say thank you very much, and Thank you. I enjoyed myself. Kamla ji, I want to thank you. Before Nimi can give the official thanks or Raj can give the official thanks, I want to thank you. As I said, and Neeta echoed what I said, that you know, you renew. आप वही जोश जो हम सब में है, I believe हम सब में वो जोश है कि हम कुछ करें, कि हम जो हमने इतनी सारी चीजें internalize की हैं regarding you know our gender roles, उसको हम किस तरह से we you know get rid of that and we create a new society and a new world. वो हम कभी कभी बहुत ही सुस्त हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, वो जोश आप दोबारा हमें देती हैं. और मैं एक मैसेज जो यहाँ उपस्थित सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि एक मैं नाम भूल रही हूँ, पर एक बहुत फेमस थिएटर पर्सन थे जिन्होंने कहा था कि थिएटर जो होता है वो एक रिहर्सल फॉर रेवोल्यूशन होता है. तो उसी तरह से ये जब हम बातचीत करते हैं या हम नाटक देखते हैं या हम कोई कविता लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो सब सिर्फ रिहर्सल है. और जब तक हम खुद मैदान पे उतर न जाएं और अपने अंदर और अपने आसपास आस पड़ोस हम वो बदलाव छोटी छोटी चीजों से, छोटी नहीं है एक्चुअली, हर चीज बड़ी है मेरे लिए तो, पर हर चीज में अगर हम वो बदलाव न लाएं तो नहीं कुछ बदलने वाला है. और ये बात आपने इतने बेहतरीन तरीके से कमला जी बताया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Raj, do you want to say something? No, बस थैंक यू सो मच. कमला दी को क्या थैंक यू बोलना. बिल्कुल. sorry. मैंने सुना था कि आप लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. Is that true? True. तो प्लीज निधि को भेज दीजिएगा जब भी जरूर हो जाए, प्लीज. I take the responsibility of sending it to her. And do we have the permission to convert it into a YouTube and make it accessible to people? Absolutely. मेरी तरफ से तो, because that's what I would do. Thank you. Thank you, Kamla ji. I'll definitely send it across to Nidhi. Any other faculty member who wants to thank Kamla ji, then I will conclude. Anyone else? Ma'am, actually, ma'am, I'm a student of Janki Devi Memorial College, Department of Sociology, and my name is Bhumika. So, ma'am, we were talking about like the feminist poetry. So, ma'am, I started writing a lot of poems during this lockdown. So, like I'm very passionate about gender rights, basically, like right from class 8, I guess. So, so can I share my poem, please? Yes. Do I have the permission? No, you have the permission. Please. Thank you, ma'am. Thank you. जी भूमिका. So, just give me 1 minute, ma'am. I'm just taking it out. 1 minute? बहुत लंबा होता है भूमिका. Sorry, ma'am. Sorry. Basically, here it goes. One is not born, rather becomes a woman. When I was born, I was unknown to the world of men. I opened my eyes wide enough to see the beauty of this world. Little did I know at that time, with beauty lie ugliness, with freedom lies bondage. I was free to crawl and walk around, free to cry and wail aloud. One day, all this changed. My mother told me that you are a girl and you need to behave. My freedom was taken away. I was taught to dress, sit, and live by their way. My father taught me, don't speak much. They never realized what it meant as such. As time passed away, my choices held no value. I was offered a world which the world chose for me. Nobody asked whether I was happy or not.
All they cared about was their pride and respect of thought. I was reluctant to accept the changes which I never demanded, but then nobody came to my rescue and I was taken for granted. I wanted to study, I wanted to travel the world, I wanted to dance around and roam in a ferry, but all they wanted to do me, like they wanted to let me marry. I was not allowed to love, but to be with someone who was a vulture disguised as dove. I worked hard to make this home a house, but I was daily beaten up by my spouse. I was looked down as something filthy each time I bled. Little did they all knew with my blood my power fled. Years after one moment of joy came, I had a beautiful daughter, and I promised her that the world to her would never be the same. I left the house and wandered with my child, helpless but strong this time. I worked hard for her and offered her a world of her own. I completed my dreams through hers, and then it was not again the world only meant for misters. Thank you. Thank you, Bhumika. Thank you very much. Okay, दोस्तों. Thank you so much, ma'am, for an informative session. It has changed our life completely. Thank you. Anyone else who wants to thank Kamla ji? I'm sure there are many people who really want to thank you. And Kamla ji, thank you so much for firstly accepting our invitation and being here with us today. You had a long association with JDMC, but every time you come here, we learn something new from you. It's a learning experience for all of us. Thank you so much for sharing your thoughts, your insights, your experiences more than anything else. And we look forward to a longer association with you. Thank you. Thank you मत करिए, बस हाथ पकड़ेंगे और आगे चलेंगे और पितृ Absolutely. We promise you that. Because this is neither your cause nor my cause, it is a common cause. I come to you because I need new partners. You call me because you need new partners. So it's a partnership, and partners don't have to thank each other. I celebrate our partnership. Absolutely. We are with you. Bye-bye. Thank you so much. Ji. Thank you. Thank you, participants. We are about 170 of us here today, and it's overwhelming. Thank you, everybody, for taking time out and attending this session organized by HDFE. Thank you, Principal Dr. Swati Pal. Thank you, faculty members from other colleges, students, and friends from different NGOs. And I think there are some parents here. Thank you so much for being here today with us. This is really very heartening. Thank you, everybody, for supporting HDFE in this session. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much for bringing Kamla ji to us. Thank you so much, Raj. Thank you so much, Ruby. And of course, huge big thanks to HDFE. Thank you, Dr. Raju Lakshmi, for facilitating this session. Oh, no. Thank you, Professor Pal, for always it was wonderful. Let's not thank each other. Let's just carry that spirit that she has kind of imbued us with, you know, let us just carry that forward. I'm really delighted and thrilled with the girls, I must say. And I was feeling so good about being able to share that letter. And while I agree that, yes, of course, you know, we can't go to the law for everything. The change has to begin. What struck me about the letter was the pain and the anxiety of the student, which is so heartening to see, actually. You know, pain can be very liberating, and this was one example of it. Fantastic, really. Girls from JDMC, I love you all, miss you all, and so glad that, you know, you all are here in large numbers. Great going. Yeah, that's very nice. Great and going. every year we participate in 1 Billion Rising also. That's an annual feature of JDMC. Yes. And special thanks to Raj and Ruby for supporting me in this, and the entire gender course, 15 sessions. It's been a very long journey, I would say 2 months, and we managed to do it. So glad, and for everybody's support and participation. Thank you, everyone. Can we have, there are only 100 people left. Should we just take a We had 170 now. Yes, and please fill up the feedback form, which will be posted on the chat box. Ma'am, it is in the chat box already. Okay, fine. Good. I didn't see it. Videos, dear. Yeah, ma'am. Sure.
Thank you, everybody. So at the end of the day, I'm looking quite bhayanak, but never mind. Nimi, switch on your Oh, I'm video. sorry. Wait a minute. Everybody, switch on. Ishika, Simran, Niharika, Meeta, Lovely, Kriti, Vansh, Sajni Di, Kutsia, can't see Kutsia on the camera. Usha, Sneha. Sajni Di, you had your video on, अब आपने बंद कर दिया, अब आप on कीजिए. चलिए फटाफट सब फोटो ले लो भाई कुत्सिया. Yeah. Hi, Sabki le Rajni. lena. Ma'am, I've taken the screenshots. I've taken the Sabki le lena, Himanshi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Include everyone. Yes, ma'am. Really fantastic. All the participants. One day, you know, HDFE, I would like it if as a follow-up to this, Nimi, if you all could, you know, see, people really want to talk, you know. Yes. I think we should have 1, 2 or 3 hour session where, you know, you give, you know, people can write to you from beforehand and give everybody 10 minutes to maybe narrate an anecdote about something which has really bothered them and they've not been able to find related to gender, and about which they've not been able to find a solution and which they'd like to share, you know, their angst to everybody. Sometimes when we speak our mind out, it is very, very healing. It's therapeutic. So it would be wonderful if we can have that kind of a, you know, interactive session, because as I see, people really want to speak. They really want to share. I know I do, but I too always want to speak. So, but when it comes to gender issues, I agree with you. I agree with you that people do want to speak and, you know, went out and things like that. We'll work in that. Yeah, and you know, these kind of creative things like Bhumika's poem. So maybe we can have just one session on creative writing, maybe just poetry on women by the students. That would be fabulous. I would just so love that. And You know? participants also want to remind you about the article competition. Yes. 22nd September, the last day. My pockets are, you know, doing khujli to me. Ki bhai, when can I give that prize money to the best students? And if there are more than one, then I'll stretch it also. But likhna hai. What is the deadline? What is the timeline? 22nd October is the 22nd deadline. October. Okay. 22nd October. I know students are working on it. They've been talking about it to us. So we've created a separate mail ID for that so that it doesn't get cluttered with the other mails that we receive. Super. So girls, please, I want each one of you to participate and express yourselves, and it's a handsome amount that you're going to get. It's a prize which is really, really attractive, and I think all of you should participate. Give it a shot. It's not about winning, it's about participation. Absolutely. Absolutely. And you know, the best articles, I think the children might, I might as well say it, that we are going to start on an e-journal. So maybe we might put it in the e-journal. We could also, Rajni's, I don't know if she's left, but we could also put it in the college magazine. So, you know, you get read by a larger audience. So there's so many things that we can do with your articles if you write. So. Yeah, some of them really write. You know, Kohima is one student who's unwell and she's not joined today. And she's actually leading a campaign called Rape Roko along with DCW. And she actually motivates girls, and we have lots of girls from our college who are a part of that campaign. So one of these days we'll ask her to share her experiences. Absolutely, absolutely. And, I think students working who've been along with- working with organizations should also, you know, because we know that the person is, but we don't really know what the student is doing or what she's learned or what are the challenges that she's faced, or, you know, what are the frustrations she might be facing. Because, you know, like some of the questions arose from frustration also. The fact that even the letter written by the student to me, or these questions that have come up, ki, you know, filmon mein dikha rahe hain ek nayi aurat, new woman. But has that changed things? Has that changed things really? So, you know, there is an underlying desperation and frustration which we need to address, I feel. Yeah, Yes, very that's true. true. That's true. What has changed the ground reality is what is to be checked out. Absolutely. Absolutely. But, you know, I thought she made a fantastic point
कि हम we want the Bhagat Singh to be born. Somebody said it, and Kamala ji also said कि भाई things like शादी मैं तो इकलौती हूँ तो मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए या whatever, दहेज नहीं लेना चाहिए, पर मेरे पेरेंट्स तो मुझे सब कुछ देंगे. I have always detested that. Always detest. You cannot have two sets of rules. You cannot intellectualize. एक हम intellectual level में बड़ा बोल देते हैं कि no, this is the right thing to do, कि हमें दहेज नहीं देना चाहिए हमें. But I'm only giving gifts. When we are giving gifts, why are you giving gifts? If you're saying that your daughter can stand on her own feet, then why are you giving her gifts? Let that gift be her ability to stand on her own feet. Let her have the satisfaction of buying her own things with her own money. So give her that. It's like, what about that stupid boy whom she's getting married to? I mean, why? Sorry, my husband might probably have things to say about that. But what I'm simply saying is that if there is really equality, then why should we not, why shouldn't we apply it first to ourselves? मेरी शादी होगी तो बड़ी धूमधाम से होगी, मैं क्यों registered wedding करूंगी? ये पैंडेमिक ने एक चीज कर दिया है, वो 50 लोग जो आ रहे हैं शादी में, वैसी शादियां होती थी पहले. जब मैं छोटी थी बस घर परिवार के लोग होते थे, हलवाई आता था खाना बनाने के लिए. और अब क्या होता है, 5 स्टार से कम सोच ही नहीं सकते. शादी में जब तक 40-50 लाख खर्च न हो, एंड आई एम